Hello, good morning students. Today we discuss about the remaining property of indifference curve. The property number 4. Property of indifference curve. Now, property number 4. Higher indifference curve give high level of satisfaction. कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करेंगे, जैसे हमने लिया y वर्टिकल लाइन, x हॉरिजॉन्टल, y पर लिया हमने y गुड और x पर लिया हमने x गुड। This is our indifference curve, IC1, and this is another indifference curve, that is IC2. Now, we are at point y1, x1. This is point A. But when we move from point A to point B, which is located on higher indifference curve, like point B, so we are consuming more quantity of y and more quantity of x. कि जब हम पॉइंट A से पॉइंट B, जो कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे लोकेट करता है, उस पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा y का क्वांटिटी कंजम्पशन इंक्रीज होगा या x का क्वांटिटी कंजम्पशन इंक्रीज होगा या फिर दोनों का ही क्वांटिटी कंजम्पशन प्लस होगा। और ऐसा होने से क्या होगा, इफ क्वांटिटी कंजम्पशन increases, if quantity consumption increases, total satisfaction will also increases if we are increasing the consumption of one good or both goods without sacrifice of other goods. तो क्या हो रहा है, देखिए, जब हम A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा जो क्वांटिटी कंजम्पशन है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो प्लस हो रहा है। ठीक है, ध्यान रहे, क्वांटिटी कंजम्पशन इंक्रीज होना केवल इस स्टेटमेंट के बेस पर हम नहीं कह सकते कि हमारा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। क्वांटिटी कंजम्पशन इंक्रीज हो विदाउट सैक्रिफाइस ऑफ अदर गुड्स। जैसे हम 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स वाई, हमने y प्लस किया लेकिन x हमने सैक्रिफाइस नहीं किया, या x हमने प्लस किया, y हमने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो उस केस में हमारा सेटिस्फेक्शन प्लस हो जाएगा और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी। हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हाई लेवल ऑफ satisfaction. Is it clear?
नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, टू indifference curve never cross together. Two indifference curve never cross together. कि कभी भी इंडिफरेंस कर्व जितने भी हम तैयार करेंगे एक ग्राफ के अंदर, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? YOX, let this is an indifference curve IC1, this is another indifference curve IC2, both indifference curve cross together. So according to the property, these indifference curve are not a right indifference curve because they cross together. So according to the property, they should not cross. Why they should not cross? We can explain on Y we are taking Y goods again, and on X we are taking X goods again. ठीक है? Now here are the way to explain. This is the point IC2, this is IC1. We can explain it with the height of the indifference curve. Let we hide this portion of indifference curve. Now, which is the higher indifference curve? IC1 is the higher indifference curve. If we hide this portion, we get this IC1 is the higher indifference curve and IC2 is the lower indifference curve. So according to the property number 4, IC1 give more satisfaction compared to IC2 if we hide the lower portion of this indifference curve. Now, if you hide the upper portion, the result become opposite. If you hide upper portion, IC2 is now higher indifference curve and IC1 is lower indifference curve. So IC2 give more satisfaction compared to IC1. Now these property or these equations cannot justify. How? The IC1 give more satisfaction to IC2 and IC2 give more satisfaction from IC1. This is not possible. कि एक बार IC1 आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और एक बार IC1 आपको कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन इंडिफरेंस कर्व की यही कहती है कि ईच पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल गिव सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसका मतलब जो पॉइंट यहां पर ए पॉइंट है, A2 पॉइंट है, ये हमें सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। इसी प्रकार से B1 पॉइंट, B2 point will also give same satisfaction. But according to the property of, according to this equation, A1 give more satisfaction from B1 and B2 give more satisfaction from A2. While B1, B2 are equal, A1, A2 are equal. तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आपस में चीजें, इसलिए एक इंडिफरेंस कर्व एक राइट इंडिफरेंस कर्व नहीं है। इसलिए राइट इंडिफरेंस कर्व के लिए क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व शुड नॉट क्रॉस टुगेदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। यहां एक नंबर का छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट इंडिफरेंस मैप। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप इज ए मैप व्हेन वी ड्रॉ मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व इन द सेम ग्राफ। कि जब हम सेम ग्राफ में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। जैसे ये हमारे पास एक ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ हम ले रहे हैं साइड में,
दिस इज नॉट इंडिफरेंस मैप। IC1 ये इंडिफरेंस मैप नहीं है, लेकिन जब हम इसमें एक से ज्यादा इंडिफरेंस का ड्रॉ करेंगे, IC2, IC3, तो अब ये क्या हो गया, इंडिफरेंस मैप हो गया। तो अब एक ग्राफ में एक से ज्यादा इंडिफरेंस का ड्रॉ किए जाएंगे तो ऐसे ग्राफ को हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। तो आज हमने आपके सामने सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी हैं। पहली प्रॉपर्टी में रिपीट कर देता हूं, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कैसा होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। क्यों होगा, इट इज सो बिकॉज डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। दूसरा, नेगेटिव स्लोप, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप कैसी होगी, नेगेटिव होगी, मतलब इसकी मूवमेंट होगी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, जैसे ये बने हुए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। क्यों होगा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व, इफ वी आर कंज्यूमिंग वन गुड मोर, need to sacrifice some quantity of other goods necessarily। ठीक है, तो हमें दूसरी गुड्स की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिफरेंस का नेगेटिव स्लोप रहेगा। इंडिफरेंस का नेवर टच और क्रॉस टू द वाई और एक्स एक्सिस, ये कभी भी वाई और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि टच करने का मतलब है सिंगल गुड्स कंजम्पशन, दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी एक बार में कंज्यूमर टू गुड्स कंज्यूम करेगा तो इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ होगा। सिंगल गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व नहीं बनता। चौथी प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व नेवर क्रॉस टुगेदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। और हाई इंडिफरेंस कर्व गिव हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इनको तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो ये मान लीजिए 100% श्योर आपका 3 to 4 मार्क्स का वर्क तैयार हो जाता है। ये प्रॉपर्टी इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे about the budget line, how we draw a budget line, how we get budget equation, how we get budget set, ये सब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और उसी के साथ ही हमारा जो लेसन है इंडिफरेंस कर्व का, इंडिफरेंस टॉपिक का, वो कंप्लीट होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज तक के लिए इतना ही काफी है, प्लीज तैयार कीजिए।